So general anesthetics, we are starting our drug acting on a CNS. As if you are not aware about that, we have already seen our nervous system from anatomy, physiology, and based upon that, there are chapters in pharmacology, as I told you. So you can see there are around 5 to 6 chapters which are based upon the nervous system. There is one whole section known as a drug acting on CNS, drug acting on ANS in the pharmacology. So once you understand this nervous system, you will able to understand the. If you understand the basics of nervous system, then definitely you are going to understand the mechanism, adverse effect, then classification of your general anesthetics, then sedative hypnotics, anticonvulsants, local anesthetics, CNS stimulants. Okay, then antipsychotic drugs. In that also you have uh, antidepressants and all that. So anti-Parkinson drugs, antidepressant drugs. So you are going to understand that. Okay. After that, there is one more section from your pharmacology which is based upon the nervous system. And that section is nothing but the drug acting on ANS. तो ड्रग एक्टिंग ऑन CNS एक पूरा 5-6 चैप्टर का सेक्शन होता है. ड्रग एक्टिंग ऑन ANS एक पूरा अगेन 4 चैप्टर का सेक्शन होता है. सो अपन ने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम के बारे में ऑलरेडी देखा है. सो टुडे विल स्टार्ट आवर जनरल एनेस्थेटिक्स and if possible sedative hypnotics also. First of all, drug acting on CNS. Okay, drug acting on central nervous system. Now these drug may either increase the activity of CNS. So those drug which increases the activity of CNS, those drug which increases the or which enhance, which stimulate or which increases the activity of nervous system, the physiology of central nervous system known as a central stimulant. Those drug which depresses or decreases, okay, or minimizes the activity of central nervous system known as a CNS depressants. CNS stimulants means those drug which will increase the activity of central nervous system. CNS depressants means those which will decrease the activity of CNS. Now these CNS stimulants, they have very limited applications. Most of the drugs, they are having importance of, those are nothing but the depressant drug. जो CNS stimulant drug होता है उनका बहुत ही कम एप्लीकेशन होता है, और जो CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है. CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स आपका एपिलेप्सी में यूज़ किया जाएगा, आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स इंसोम्निया में यूज़ किया जाएगा, आपको एंजियोलाइटिक यूज़ किया जाएगा, एज अ एनेस्थेटिक यूज़ किया जाएगा. CNS डिप्रेसेंट ड्रग ज़्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू CNS स्टिमुलेंट, बिकॉज CNS स्टिमुलेंट आर वेरी सेल्डमली रिक्वायर्ड. CNS स्टिमुलेंट बहुत कम बार लगता है, CNS स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. CNS डिप्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, एज अ एंजियोलाइटिक, एज अ एंटीसाइकोटिक, ठीक है, एज अ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग. सो remember, CNS stimulant drugs, they have limited application. CNS depressant drug, they have numerous applications. Okay, now these drugs, they may be classified. Okay, drug acting on CNS, there are different chapters as I told you. So narcotic analgesics is there. Narcotic analgesic is one again separate chapter. नार्कोटिक एनालिसिस का एक सेपरेट चैप्टर रहेगा. नार्कोटिक मतलब क्या? नार्कोटिक इज नथिंग बट द, इट इज अ टर्म विच वाज originated from the one word. Narco means sleep. When narco means sleep, those drug which induces the sleep and relieves the pain. So analgesics means what? Analgesics means these are the drug which decreases the pain sensation. ये पेन कम करेंगे, आपका दर्द कम करेंगे, आपकी तकलीफ कम करेंगे, ठीक है. तो नार्कोटिक एनालिसिस मतलब क्या? ऐसे ड्रग जो आपको नींद भी लाएंगे और तकलीफ भी कम करेंगे. फॉर एग्जांपल योर मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, तेबेन, ओके, पापावेरिन, नास्कोपिन, देन योर हीरोइन, देन मेथाडोन, पैथेडीन, meperidine, etc. So all these drugs are known as narcotic analgesics. So they will induce sleep, they will decrease your pain, they will relieve your pain, and they will interact with the narcotic receptor or opioidal receptor. They are also known as opioid analgesics. Narcotic analgesics, they are also known as opioid analgesics. Then anxiolytic means what? These are the drugs which will decrease your anxiety and apprehension. आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है, एंजियोलाइटिक आपका टेंशन कम कर देगा. So they will decrease your anxiety. So if your anxiety state, अगर आपको एंजाइटी हो रहा है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो ये ड्रग आपको क्या करेंगे? एंजाइटी डिक्रीज करेंगे, आपके सीनेस को लिटिल बिट डिप्रेस करेंगे एंड आपका एंजाइटी कम करेंगे. सो एंजियोलाइटिक, दीज आर द ड्रग विच विल डिक्रीज योर एंजाइटी. नाउ सेडेटिव,
Again another term, sedative. Sedative means these are the drug which will induce the sleep. Okay, which will induce, these are the drug which will decrease your excitement. Sedative क्या होता है कि these drug which will decrease your excitement, excitement कम करेगा. So increased stimulation that will be decreased by these sedatives. So they will calm your nerve. So only calming effect, nerve को क्या करेगा, शांत करेगा आपकी. So sedative means these are the drug which has a calming effect on the nerve, and they will reduce your, they will decrease your, they will minimize your excitation. Okay, excitation, excite जो हो चुके हैं आप वो कम करेगा. Anxiolytic means they will decrease your anxiety, anxiety. Okay, now sedative is there, anxiolytic is there, and hypnotics are there. So what do you mean by hypnotic or hypnotics? So these are the drug which induces the sleep. When they are given, they directly induces the sleep, resembling to a natural sleep. जैसे आप नेचुरली सो जाते हो ना, उस तरीके की स्लीप आपको ये प्रोड्यूस करेंगे. कौन? हाइप्नोटिक ड्रग्स. ओके, सो सेम ड्रग. ओके, यू कैन सी एंजियोलाइटिक, दे विल डिक्रीज योर टेंशन और एंजाइटी, टेंशन और एंजाइटी. सेडेटिव, दे विल डिक्रीज योर एक्साइटमेंट, दे विल रिड्यूस एक्साइटमेंट, दे विल काम योर नर्व, बट दे विल नॉट प्रोड्यूस स्लीप. ये जो सेडेटिव होता है ये स्लीप नहीं करेगा डायरेक्टली. ओके, ये कामिंग इफेक्ट करेगा, आपको थोड़ा सा सेडेशन आ सकता है बट नींद नहीं आएगी. ओके, दे आर नोन एज सेडेटिव. दे आर द क्वांटिटेटिव टर्म्स. तीनों भी क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म्स है. सो हिप्नोटिक मीन्स व्हाट? सो दीज आर द ड्रग विच डायरेक्टली इंड्यूसेस द स्लीप. ये आपको डायरेक्टली स्लीप में लेके जाएंगे. सो विच रिजेंबल्स टू नेचुरल स्लीप. सो all these three terms, anxiolytics, sedatives and hypnotics, they are the quantitative term. A same drug will exert an anxiolytic effect, a same drug can exert a sedative effect in higher dose, and if you increase a dose it may exert a hypnotic effect. For example, barbiturates, benzodiazepines, ये जो drugs होते हैं benzodiazepines, barbiturates, so all they are also used as anxiolytic, sedative, hypnotic, anticonvulsant. So they are nothing but known as a dose dependent action. Dose dependent action. For example, okay, diazepam in a 5 milligram dose it may act as a anxiolytic. Diazepam in 25 to 30 milligram dose it may act as a sedative. Diazepam more than 50 it may act as a hypnotic. So drug may act as a sedative, hypnotic or anxiolytic depending upon the dose. Okay, so they are known as a dose dependent action. Now another chapter or another topic from drug action is nothing but the anticonvulsant. Anticonvulsant. So these are the drug which will decrease the convulsions. Convulsions means extra neuronal firing. So when there is a continuous stimulation of your neuron, आपके ब्रेन में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस स्टिमुलेशन हो रहा है, कंटिन्यूस फायरिंग हो रहा है. क्यों हो रहा है? वेदर आपको आपके सीएनएस में या फिर ब्रेन में आपका कोई इम्पैक्ट हुआ है, डैमेज हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, या फिर आपका है ना, सो एक्सीडेंट हो चुका है, या फिर आपका इन्फेक्शन हो चुका है, सो या फिर आपका कोई ट्यूमर है आपके ब्रेन में. सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट दीज रीजंस व्हाट हैपन्स, देयर इज अ कंटिन्यूस न्यूरनल फायरिंग. तो कंटिन्यूस न्यूरॉन आपका स्टिमुलेट होते रहेगा, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? मसल्स के ऊपर. सो मसल भी आपके कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डेवलप ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कन्वर्जेंस, मसल मूवमेंट. कन्वर्जेंस आर नोन एज अ पर्टिकुलर मसल मूवमेंट, जर्की मूवमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस. तो एंटी कन्वर्जेंस मीन्स these are the drug which will decrease your convulsions, or simply these are the drug which will decrease your epilepsy. They are known as anti-epileptic drugs also. Okay, so they are also basically CNS depressant. ये भी से है CNS depressant drug होते हैं, and by depressing the CNS, by depressing the neuron, they will decrease the excitability of your neuron. Okay, they will decrease the continuous firing of your neuron. Again, general anesthetics. General anesthetics, these are the drug which will produce anesthesia, generalized anesthesia. So these drugs, they will decrease the all the sensation of pain, touch, temperature. Okay, you can say these are the drug which decreases the all modalities of sensation. Okay, with the reversible loss of consciousness. ये क्या करेंगे? अनकॉन्शियस करेंगे आपको. with the reversible loss of consciousness. Reversible loss of consciousness. Reversible loss of consciousness मतलब क्या? अभी आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है. So you are conscious. So during the anesthetic agent, under the influence of anesthetic agent, what happens? आप जब anesthesia देता है आपको, हो चुका है आपको anesthesia दिया है आपको,
तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आप सो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिटेच होते हो, राइट. सो दीज आर द ड्रग विच विल प्रोड्यूसेस द loss of pain sensation and other sensation with the reversible loss of consciousness. So they will produce the sleep, they will produce the analgesia, okay, they will produce the sleep, they will produce the analgesia, and they will produce the anesthesia. So that is known as anesthetic, general anesthetic. There are local anesthetic also. In general anesthetics is the term, so your whole body will get anesthesia, आपके पूरे बॉडी में एनेस्थीसिया हो जाएगा, ठीक है. आपको समझ में आएगा, टच सेंसेशन नहीं, पेन नहीं, मतलब जिंदा मुर्दा. आप जिंदा तो हो लेकिन आपको कुछ फील नहीं हो रहा है. तो होते ना आशिक वाले भी, जो होते ना आशिकी करने वाले, बाद में जो उनका सब कुछ बिगड़ जाता है तो फिर वो भी जिंदा मुर्दा बन जाते हैं. तो उसी तरीके से जनरल एनेस्थेटिक देने के बाद में आप जिंदा मुर्दा बन जाओगे, मतलब कोई नहीं, मतलब फीलिंग ही नहीं उसमें, नो फीलिंग. ओके, आपको किसी ने आके कुल्हाड़ी से आपका पैर भी तोड़ दिया तो जनरल एनेस्थेटिक के इन्फ्लुएंस में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो जनरल एनेस्थेटिक्स दे विल decrease the pain sensation, they will decrease the all kind of sensations with the reversible loss of consciousness. They will produce you sleep, they will produce you amnesia. Amnesia means क्या होता है, okay, amnesia, A for amnesia. Amnesia means loss of memory. So you will not remember what happened during the operation. डॉक्टर ने आपके साथ क्या क्या किया, डॉक्टर ने आपका पैर काटा, उसके बाद में उसको सिलाई की, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. So that is known as amnesia. You will lose the memory. Okay, so loss of memory, but it is the reversible. मतलब ये जब आप रिकवरी होता है anesthesia से, so when you will recovered from anesthesia, under the anesthesia is nothing but the whenever there is the time span for which drug is in the body. जब तक ड्रग आपकी बॉडी में है तब तक आप एनेस्थेसिया में हो. जब आपका ड्रग विड्रॉ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बॉडी में से, तब आपके सेंसेशन रिगेन चलो हो गए. जनरल एनेस्थेटिक्स, दीज आर द ड्रग विच डिक्रीजेज द ऑल मोडेलिटीज ऑफ पेन सेंसेशन along with the touch, temperature, okay, but with the reversible loss of consciousness. And general anesthetics, they will produce anesthesia in all organs, okay, or throughout the body. Now there is another term known as a local anesthesia. So local anesthesia means these are the drug, they will produce a loss of pain sensation at a particular area. जैसे आपने क्या किया कि आपका मान लीजिए आपका बर्न हो गया कहाँ पे, पैर में, और वहाँ पे सेप्सिस हो गया. सो पैर में बर्न हो गया, सेप्सिस हो गया, तो वो निकलना है, आपको जख्म पूरा खुदेर के निकलना है. डॉक्टर क्या करता है, फिर आपको वहीं पे लोकली लिग्नोकेल का इंजेक्शन देता है. सो लिग्नोकेल इज नथिंग बट लोकल एनेस्थेटिक, and it will produce anesthesia at a localized period, at a localized surface. So general anesthesia means they will produce anesthesia, generalized anesthesia, they will produce anesthesia throughout your body. Local means they will produce anesthesia locally, right? Then antipsychotic drugs are there. Antipsychotics, okay, so basically psychopharmacology. So if there is a imbalance between dopamine and acetylcholine, okay, if there is increased catecholamines, decreased catecholamines, so that result in the various psychiatric disorders like your schizophrenia, mania, okay, depression. So those are nothing but psychic disorders. So they are also seen as depressant drug. ये भी क्या करते हैं, ब्रेन को डिप्रेस करते हैं. Antipsychotic drugs are also depressant drugs. So on this also there is a whole huge chapter. Okay? Then drug used in the Alzheimer's and Parkinson disease. So now what is the cause of Alzheimer's disease? Anybody? What is the cause of Alzheimer's disease? Anyone? What is the cause of Parkinsonism? No. Okay, in case of Alzheimer's there is a degeneration of which neuron? In case of Alzheimer's disease there is a degeneration of cholinergic neuron. Remember, यहाँ पे क्या होता है, okay? So in the Alzheimer's disease there is a degeneration of cholinergic neuron. So your body has a deficiency in the acetylcholine. But in case of Parkinsonism there is a degeneration of dopaminergic neuron. Parkinsonism में डोपामाइन का डिफिशियंसी होता है, right? So यहाँ पे याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है आपको, किसमें क्या डिफिशियंसी, डोपामाइन, यहाँ पे एसिटिलकोलिन. So
deficiency of acetylcholine is there in Alzheimer's disease, deficiency of Parkinson is there in a deficiency of dopamine is there in a Parkinson disease. मैंने example भी बोला था आपको. So for example, you may have seen one movie known as Uri the Surgical Strike. Uri the Surgical Strike जो था मूवी, उसमें जो एक्ट्रेस लीड एक्टर, उनका नाम है विकी कौशल. ठीक है, तो विकी कौशल की जो मम्मी होती है वो कभी कभी भूल जाती है और वो वहाँ पे घर से बाहर जाती है भूल के. राइट, सो उनको क्या होता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर डिसीज. सो देयर इज डिमेंशिया, अमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो वहाँ पे उनको अल्जाइमर्स होता है. लेकिन जो पार्किंसन है, पार्किंसन के बारे में मैंने बोला था आपको कि पार्किंसन के एक मूवी के बेस के ऊपर आपको याद रखना है. फॉर एग्जांपल जैसे पार्किंसन कब होता है, देयर इज़ वन मूवी इन बॉलीवुड, वो 90s का मूवी था. सो द नेम ऑफ मूवी इज़ नथिंग बट द राजा नाम का एक मूवी था. उसमें संजय कपूर थे लीड एक्टर, माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस थी, और उसमें परेश रावल जो है ना वो संजय कपूर के भाई का रोल प्ले करते हैं, बड़े भाई का. तो जो परेश रावल जो होता है उनको वहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में दिखाया है. ठीक है, तो वो जो कैरेक्टर है ही सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म, उस कैरेक्टर. सो पार्किंसनिज्म में क्या होगा, फिर डोपामाइन का डिफिशिएंसी है तो साइलोरिया, सिबोरिया, ठीक है, ट्रिमर्स, वेट, पोस्चर, लॉस ऑफ पोस्चर. अल्जाइमर्स में क्या होगा, सिप मेमोरी का प्रॉब्लम होगा. अल्जाइमर्स में भूल जाएंगे. सो याद रखना है आपको, अल्जाइमर इज बिकॉज ऑफ द degeneration of cholinergic neurons and Parkinsonism is due to the degeneration of dopaminergic neuron, right? Then CNS stimulants, as I told you, CNS stimulants means these are the drugs which will increase the activity of CNS, or these are the drugs which will increase the activity of CNS and they will increase your performance, like muscular performance, पर्टिकुलर काम के लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे. ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक, दे विल प्रोड्यूस एनेस्थेसिया एट अ पर्टिकुलर applied site. They will reduce the pain sensation, they will decrease the pain sensation, they will abolish the pain sensation when applied it locally. Right, now excitability of neuron, excitability of neuron depends on the, आपको मालूम है न्यूरॉन का न्यूरनल मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूरनल मेम्ब्रेन, राइट. सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूरनल मेम्ब्रेन. सो इसके ऊपर क्या होता है, यू विल हैव माइलिन शीथ, यू नो दैट ऑन द न्यूरनल मेम्ब्रेन एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ, and it is responsible for the excitation. Okay, so in the neural membrane, inside the neural membrane there is a negative charge. यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. एंड बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज. क्यों, क्योंकि सोडियम इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ओके, सोडियम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है. व्हेन सोडियम, कैल्शियम, व्हेन दे विल enter into the neuronal cell membrane, what will happen, there is a depolarization and there is a excitation, or the impulse is generated either or impulse is carried either. Okay, तो यहाँ पे impulse carry होगा, generate होगा. ठीक है, excitability of neuron depends on the flux of ions. Flux of ions means movement of ions in the neuronal membrane through ion channels. So entry of sodium, okay, entry of sodium is known as sodium influx. Okay, entry of sodium or either exit of potassium. So sodium is known as a extracellular cation. सोडियम को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन, पोटेशियम को बोलते हैं इंट्रासेलुलर कैटायन. ठीक है, तो पोटेशियम सेल के अंदर रहता है. ठीक है, पोटेशियम अगर पोटेशियम सेल के बाहर निकला तो क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत निगेटिविटी बैलेंस किया था पोटेशियम ने, पोटेशियम बाहर निकला तो और भी ज़्यादा निगेटिविटी हो जाए. सो या फिर एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल और मोर पोटेशियम इन द सेल, दैट विल हैपन सेम थिंग. तो अगर सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर गया तो डीपोलराइजेशन होगा, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा हद तक अंदर गया तो पोटेशियम का भले ही वीक है लेकिन है ना कैटायन, सो इट विल आल्सो कॉज डीपोलराइजेशन. सो एंट्री ऑफ सोडियम, एंट्री ऑफ पोटेशियम और इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम result in the stimulation or excitation as a result of depolarization. Okay? Then if there is entry of chloride, okay, in the cell, neuronal cell, so or exit of or entry of chloride or exit of potassium, efflux मतलब exit, influx मतलब entry. ठीक है, efflux means exit, influx means entry. Okay, so chloride influx or potassium efflux result in the hyperpolarization and that result in the depression or inhibition. Okay, then there are different type of ion channels, ligand gated ion channels or mechanically operated ion channels or voltage gated ion channels.
So first one is nothing but the voltage gated ion channels. We have already seen this, I think. But well, so voltage gated ion channels, they are regulated by changes in the membrane potential. Axon में क्या होता है, due to change in the membrane potential, sodium channels are there. Okay, for the propagation of impulse, presynaptic calcium channels, they release the neurotransmitter. So voltage gated ion channels, they are regulated by changes in the membrane potential. Okay, जैसे एक्सोनल सोडियम चैनल होता है और प्री सिनेप्टिक आपका कैल्शियम चैनल होता है. सो दे कैल्शियम चैनल तो क्या करता है, कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल. आयन चैनल सेकंड होता है आपका, एक तो है वोल्टेज गेटेड, दूसरा होता है ट्रांसमीटर और रिसेप्टर गेटेड और न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल. सो न्यूरोट्रांसमीटर विल इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर एंड देन आयन चैनल विल ओपन. तो पहले न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्ट होगा रिसेप्टर के साथ में, बाद में ओपन करेगा वो. ठीक है. सो रेगुलेटेड बाय न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्शन विद द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर, देन रिसेप्टर linked to the ion channel which works via secondary messenger. So we have seen voltage gated ion channel, how they will operate. Voltage gated ion channels. Okay. Suppose this is a extracellular site, external site, and this one is an intracellular site, right? So when there is an entry of any cation like sodium or potassium inside the cell, there is a depolarization. Okay, and that results in the stimulation or either conduction of impulse. Okay, stimulation होगा, impulse generation होगा, या फिर वहाँ से कैरी किया जाएगा. ठीक है, that result in the stimulation or increased activity of particular cells, तो उसको बोलते हैं depolarization. अगर वही इसमें ही instead of sodium and potassium, that is cation, if anion goes inside, chloride अगर अंदर है, so अंदर तो already negativity है, so chloride will cause more negativity. That is known as a hyperpolarization, and that results in the decreased activity or depression effect. Okay, so depolarization results in the stimulatory effect, hyperpolarization that results in the depressed effect. याद रखना है आपको, स्टिमुलेशन कब होगा, डिप्रेशन कब होगा. ठीक है, voltage gated ion channels. ठीक है, they now these are the targets for some drugs like some anesthetics and anticonvulsants. They blocks the sodium ion channels and calcium ion channels. So particularly most of the anti-epileptic drug, anticonvulsants, they block the sodium ion channels as well as calcium ion channels, and they are also targets for some anesthetic drug. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल्स. देयर इज अ डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा. गाबा का है गामा अमीनोपेट्रिक एसिड, इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ग्लूटामेट इनहिबिटरी, लाइसिन, एसिटिलकोलिन. ओके, they are the target for some anesthetic and anticonvulsant, some sedative hypnotics, anticholinergic drugs also, cholinergic and anticholinergic drugs also. So GABA is the target for sedative hypnotics and anticonvulsant. Glutamate is also target for same. Then acetylcholine is the target for cholinergic drug, anticholinergic drug. Now neurotransmitter regulated ion channels, for example coupled with the GPCR. तो ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेटेड आयन चैनल. सो न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज्ड, इट विल interact with the receptor, and then it will bring about the change in that ion channel. Then there is a movement of ions across the cell membrane. Okay, now third आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर आयन चैनल which are coupled with the GPCR, G protein coupled receptor. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल है उसका एसिटिलकोलिन, डोपामाइन. ठीक है, एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, noradrenaline, pyrrolizidamine and endorphin. So what they will do, so they are also target for some analgesic, जैसे analgesic drug है, जैसे फॉर एग्जांपल opioid analgesic, तो उनके लिए कौन सा टारगेट होता है, एंडोर्फिन. देन एंटीडिप्रेसेंट के लिए क्या टारगेट होता है, सो नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन एंड 5-HT, ये 3 टारगेट है. एंटीसाइकोटिक्स उनके लिए क्या टारगेट है, डोपामाइन, सो दे आर द डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर. एंजियोलाइटिक्स उनके लिए टारगेट होता है ना, फॉर एग्जांपल. So when neurotransmitter will be released, so it will interact with the receptor, G protein coupled receptor. So G proteins will be dissociated. There is a generation of secondary messenger, which will cause secondary messengers will cause phosphorylation. Okay, phosphorylation of certain proteins, you will get a certain effect, stimulatory or inhibitory. We have already seen this.
So yes, in the previous session, but there was no recording, so मैं भूल गया recording इस करके. Secondary messenger you should know cyclic GMP, cyclic AMP एक होता है. cyclic AMP मतलब cyclic adenosine monophosphate, cyclic GMP मतलब cyclic guanosine monophosphate, IP3 मतलब inositol 3 phosphate, DAG मतलब DAG means diacylglycerol, calcium is known as a tertiary messenger. Okay, this messenger released results. After that there is a phosphorylation of certain proteins and you will get a long term effect. Okay, so we have already seen this neurotransmitter, so again I will in a very short period I will explain. So first one is a glutamic acid. So neurotransmitter मतलब क्या, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब मैसेज भेजने वाला. तो आपके पास भी मैसेज भेजने वाला होता है, आपके पास भी मैसेज भेजने वाला होता है, कबूतर जा. तो ये नर्वस सिस्टम का कबूतर है कौन, न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर it will transmit a message, it will signal from one neuron to another neuron. Okay, so there are certain neurotransmitter, we have seen that classification of neurotransmitter and all that. So amino acids are there, amines are there, peptides are there. We have seen some neurotransmitters, they are stimulatory in nature, some they are inhibitory in nature. We have seen this. Okay, so first one is the glutamic acid. It is a stimulatory neurotransmitter. It increases the entry of cations in the neuronal membrane, causes the depolarization. Okay, so it may be either direct coupled with the receptor, direct coupled with the ion channel, or या फिर वो GPCR के थ्रू भी कपल्ड होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल NMDA, N-methyl D-aspartate is a target for ketamine. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. केटामाइन इज नथिंग बट द NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. केटामाइन क्या है, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. आप आज देखने वाले इसका. देन नेक्स्ट आता है आपका गाबा. बाबा नहीं, बाबा अलग है, ये गाबा है, गामा aminobutyric acid. So it is an inhibitory neurotransmitter. It increases the entry of chloride ion. It increases the chloride influx and potassium efflux. पोटेशियम को बाहर निकालेगा, क्लोराइड को अंदर डालेगा. ठीक है, सेल के अंदर, न्यूरोनल सेल. यहाँ पे सेल कौन सा है, न्यूरोनल सेल. तो आप बॉडी का दूसरा सेल लें. डायरेक्ट कपलिंग होता है इसका, विद डायरेक्ट कपलिंग विद आयन चैनल एंड इंक्रीज्ड. ओके, लेवल इज इंक्रीज्ड. सम drugs will alter the level, some will act as agonist, some will act as a precursor, some will act as a by acting on its receptor. So certain sedatives, hypnotics, anticonvulsants and some muscle relaxants, they act via GABA receptor. Then acetylcholine is there. It is a neurotransmitter for parasympathetic nervous system. We have seen already. So it is a stimulatory, so it has a receptor like muscarinic receptor and nicotinic receptor. आउट ऑफ दैट M1 इज अ स्टिमुलेटरी मस्कुलिन रिसेप्टर. सो M1 जो है उसको बाइंड करके एसिटिलकोलिन विल बाइंड विद M1 रिसेप्टर, डिक्रीजेस द कैल्शियम, डिक्रीजेस द पोटेशियम इफ्लक्स एंड जनरेशन ऑफ DHA and M2. ओके, M2 इज नथिंग बट इनहिबिटरी. सो इट इंक्रीजेस द इफ्लक्स ऑफ, ओके, इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स via cyclic AMP. And then nicotinic receptor, they are the stimulatory in nature. So there is a sodium ion channel linked with that. So increase in the sodium influx, so that leads to muscle contraction. They are the target for nicotine. निकोटीन के लिए ये टारगेट होता है. ओके, निकोटीन के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर टारगेट. सो निकोटीन के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर टारगेट होता है. देन सर्टन मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं, सो फॉर मसल रिलैक्सेंट्स आल्सो दिस निकोटिनिक रिसेप्टर इज द टारगेट. एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, सो दे विल इंक्रीज द एसिटिलकोलिन लेवल. एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज क्या होता है, एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज इज नथिंग बट द एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइजेस एसिटिलकोलिन. एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज क्या है, एंजाइम है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है. तो उसको इनहिबिट किया तो एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज कम होता है ऑलरेडी, तो उसमें इनहिबिटर यूज करेंगे. ओके, देन एंटी पार्किंसन ड्रग्स में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ब्रेन में जो है ना आपका डोपामाइन एंड एसिटिलकोलिन का लेवल बैलेंस होना चाहिए. अगर डोपामाइन कम है तो एसिटिलकोलिन ज़्यादा हो जाएगा. अगर ज़्यादा एसिटिलकोलिन होगा तो कोलिनर्जिक जो एक्शन है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगी. मतलब बैठे बैठे आपके मुंह से लाल टपकेगी, है ना. वैसे तो लड़की देख के ही लड़कों के लाल टपकती है, बट बिना लड़के देखे भी आपकी लाल टपकने लगेगी, क्योंकि एसिटिलकोलिन लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया. बिकॉज एसिटिलकोलिन क्या करता है फिर, इट इज़ अ सिक्रेटोकॉक. इट विल स्टिमुलेट ऑल द ग्लैंड्स टू सिक्रेट द सिक्रेशन. जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देगा एसिटिलकोलिन, तो आपके मुंह में से
सलाइवा टपक जाएगा, ठीक है ना, लाल टपक जाएगी आपके मुंह में से. सो एसिटिल कोलिन. ओके, सो इन द पार्किंसनिज्म देयर इज वन सिम्टम नोन एज साइलोरिया. सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है उसमें. क्यों? क्योंकि डोपामाइन नहीं है. डोपामाइन नहीं तो एसिटिल कोलिन देखो दो बैलेंस करता है वहाँ ब्रेन में. तो एसिटिल कोलिन आपके लैंग्वेज में बोलना है तो वहाँ पे ब्रेन में दो गैंग होता है. एक गैंग है एसिटिल कोलिन का, एक गैंग है आपका डोपामाइन का. डोपामाइन का गैंग फिनिश तो एसिटिल कोलिन का गैंग बहुत ज़्यादा नखरे करता है ना. तो एसिटिल कोलिन बिकॉज ऑफ दैट देर आर symptoms in the Parkinsonism, some symptoms. ठीक है. Now dopamine is a inhibitory neurotransmitter in the brain. Receptor subtypes होता है इसका dopamine D1, D2, D4, D5 like that. So all they are the GPCR, G protein coupled receptor linked with the, okay. So dopamine will interact with its receptor, will increase the cyclic AMP activity and increases the it is a stimulant. Okay. So anti-Parkinson drugs, okay, so they will interact with the dopamine receptor. Dopamine receptor is the target for anti-Parkinson drug. So they will stimulate the dopamine. So they will act as a dopamine receptor agonist like that. And their activity is decreased by antipsychotic. So dopamine के रिसेप्टर में दो, डोपामाइन को रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करने वाले दो तरीके के ड्रग होते हैं, 2-3 तरह के ड्रग. सो एंटीसाइकोटिक जो होते हैं दे विल ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर इन द ब्रेन. जो एंटीसाइकोटिक होते हैं वो डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. जो एंटी पार्किंसन ड्रग होते हैं वो डोपामाइन का रिसेप्टर को एगोनिस्ट होते हैं. सो वो डोपामाइन को रिलीज करेंगे, एंटीसाइकोटिक ब्लॉक करेंगे. ठीक है. और एक होता है आपका एंटी इमेटिक ड्रग, तो वो भी पर्टिकुलरली डोपामाइन का रिसेप्टर का एंटागोनिस्टिक होते हैं, एंटी इमेटिक. सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होते हैं उनको एंटी इमेटिक इफेक्ट भी होता है, बिकॉज दे आर द डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर. तो आपको बाद में आएगा ये. नॉर एड्रेनालिन इज नथिंग बट अगेन स्टिमुलेटरी एज वेल एज इनिबिटरी. ये क्या होता है बोथ. एंड ओके, स्पीडिंग अप द सेकंड, ओके, produces the secondary messenger coupling and it is modified by CNS stimulants. Its action is modified by CNS stimulant and some anxiolytics. Serotonin जो होता है 5-hydroxytryptamine, it is again both stimulatory as well as inhibitory depending on the receptor subtype. इसका भी बहुत सारा receptor होता है. So 5HT1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 like that. Okay. So out of that 5HT3 is a ion channel, rest of the are the GPCR. उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है उस टाइम पे बोला हमने. Okay. So it is the target for CNS stimulants, antidepressant and some anxiolytics. बाद में आता है endogenous peptide. So it is inhibitory. इसके भी subtypes होते हैं. Coupling with the secondary messenger and are the targets for opioidal analgesics. Okay. We have seen this. Then again you can see different neurotransmitter distribution and they repeat. Okay. सो अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? देखो एसिटिलकोलिन क्या है, अमाइन है. पूरा नहीं लेता मैं अभी, शॉर्ट में लेता हूँ. अमाइन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन है. नॉर एड्रेनालिन ये अमाइन ही होता है. डोपामाइन भी क्या है, अमाइन होता है. 5-hydroxytryptamine भी क्या है, अमाइन है. सो ये सबको जो है ना, सॉरी ये तीनों को बोलते हैं मोनो अमाइंस. तीनों जो है ना मोनो अमाइंस, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन एंड 5-hydroxytryptamine, हिस्टामाइन. तो ये जो है मोनो अमाइंस होते हैं. देन अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर ये होता है आपका एल ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, गामा अमीनोपेट्रिक एसिड, ग्लाइसिन. दे आर द अमीनो एसिड्स. देन पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें सब्सटेंस भी आएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन आएगा. ठीक है. ये ऑलरेडी देखा था अपन ने, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में, उसका रिकॉर्डिंग नहीं है अभी. नाउ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक. So general anesthetic, these are the drug which will decrease all the modalities of pain sensation with the reversible loss of consciousness. Okay, they will decrease your CNS, they will cause loss of consciousness, pain sensation, touch sensation, all sensation will be abolished. सब sensation आपका मर जाएगा, abolish हो जाएगा, and आपको पता भी नहीं चलेगा कब डॉक्टर ने आपकी टांग काट ली, कब आपको स्टिचेस मार दिया और कब सिल के वापस बिठा दिया. So during the operation you need a anesthesia. So if any orthopedic operation has to be done, suppose you got a dislocation of knee, so what happens? So it is very painful, so it cannot be operated without anesthesia. So anesthesia is given, it will cause loss of consciousness and it will cause
loss of all pain sensation as well as other sensation for a particular time. That's why general anesthetic, they cause the reversible loss of consciousness with the loss of pain sensation, and they are useful in the surgery, right? So we are going to say in the detail, don't worry. First we'll see classification. So classification में there are two types of general anesthetic agent. So first one is nothing but the inhalational anesthetic. तो इनको क्या है, inhalation से दिया जाता है, मतलब ये आपको जैसे होता है ना मास्क, ऑक्सीजन लेने आपका, तो उस तरीके से मास्क होते हैं इसके लिए, पर्टिकुलर मास्क, उसका नाम भी है, सो वो रहेंगे. सो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट, सो उसमें भी दो टाइप आता है. सम ड्रग्स आर नथिंग बट द गैसेस. फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज अ लाफिंग गैस. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज अ लाफिंग गैस. And why it is known as a laughing gas, I will explain you today. Okay, you might know it is known as a laughing gas, but क्यों बहुत सारे बच्चों को मालूम होता है नाइट्रस ऑक्साइड इज अ laughing gas. laughing gas बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, क्यों बोला तो उसके बाद सब चुप हो जाते हैं. ठीक है, देन another gas is there, Entonox. Okay, Entonox. Then xenon, it is nothing but the noble gas. Okay, xenon is there, nitrous oxide, Entonox. Okay, these are the gases. Now gases, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स. ओके, आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है. देन लिक्विड इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ये लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे. ये क्या रहते हैं, गैसेस. सो दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय, ये जो है ना एडमिनिस्टर्ड बाय ए इनहेलेशन टेक्निक. उनके लिए दोनों के लिए भी इनहेलेशन टेक्निक के लिए कुछ पर्टिकुलर मास्क रहेंगे. ठीक है, फ्लो कंट्रोल रहेगा, पर्टिकुलर मशीन रहेगी. ठीक है, सो लिक्विड्स में आएगा आपका क्लोरोफॉर्म. ओके, ट्राइलिन, देन साइक्लोप्रोपेन, ईथर, हेलोथेन. ओके, ये सब थेन वाले, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डिसफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन. सो ऑल दीज आर नोन एज अ फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये जो है ना सब कुछ, सो ऑल दीज आर द फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्यों बोलते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उसमें फ्लोरीन है, फ्लोरीन. सो दे आर नोन एज अ फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो रिमेंबर क्लासिफिकेशन. एम आई ऑडिबल टू यू? ऑडिबल आएगा? ओके, and are you getting or not? समझ रहेगा आपको. Okay, so inhalation general anesthetics. So in the inhalation general anesthetics there are two type, gases and liquid. In the gas, nitrous oxide, Entonox. Entonox is nothing but it is a mixture of nitric oxide and carbon dioxide. nitrous oxide carbon dioxide का mixture होता है 50%. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. What is Entonox? It is a mixture of nitric oxide, nitrous oxide plus your carbon dioxide 50% and carbon dioxide 50%. Okay, then xenon is a noble gas. Okay, so xenon is a noble gas and it is the most expensive anesthetic agent. याद रखो, ये क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. मोस्ट एक्सपेंसिव इज xenon. Okay, then liquids में आएगा आपका क्लोरोफॉर्म, ट्राइन, साइक्लोप्रोपेन. तो क्लोरोफॉर्म का देखो, आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल सतर्क, है ना, क्राइम पेट्रोल सतर्क में देखा होगा आपने. सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, है ना. तो उसमें क्या करते हैं, फिर वो आता है और रुमाल लग देता है लड़की के मुंह के ऊपर, और लड़की फिर बेहोश हो जाती है, उसको लेके जाते हैं. क्लोरोफॉर्म एक्ट एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, ईथर एक्ट एज अ एनेस्थेटिक एजेंट. तो आपको ये ट्राई नहीं करना है. सो क्राइम पेट्रोल में सब झूठा होता है, तो वो सिर्फ नाटक होता है. सो डोंट वरी, तो आप क्रिमिनल नहीं हो. सो क्लोरोफॉर्म इज अ एनेस्थेटिक, देन ट्राइलिन इज अ केमिकल, साइक्लोप्रोपेन इज अ केमिकल, ईथर. ओके, ऑल दीज आर नथिंग बट द liquid. Okay, liquid inhalation anesthetic agent. Now out of that, ये जो क्या है, liquid anesthetic agent. Out of that, halothane, enfluorine, isoflurane, sevoflurane, methoxyflurane. Okay, all these are nothing but the fluorinated hydrocarbons. So they are also liquid at temperature. ये क्या है, liquid होते हैं, right? So inhalation general anesthetic. Now next is nothing but the, okay, inhalation. Next is nothing but the intravenous anesthetic agent, intravenous drugs. So they are given by intravenous route and not by inhalation route. So intravenous anesthetics, so उनमें भी क्या है, दो टाइप का होता है. एक those drug which are used for induction of anesthesia and those drug which are used for maintenance of anesthesia, or those are adjunct in the anesthesia. Okay, so intravenous anesthetic agent. So in that you have inducing agent. Those are drug which are used for the induction of anesthesia. Anesthesia के लिए induction मतलब ये induce करेंगे anesthesia फटाक से. So in that you have thiopenton, then methoxytone. Both are nothing but the thiobarbiturate acid derivative.
ये क्या है, थायोबार्बिचुरेट्स है दोनों भी क्या है, थायोबार्बिचुरेट्स। ओके, थायोबार्बिचुरेट्स दे आर नोन एज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। ओके, इनका लिपिड सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, दे आर हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड दैट्स व्हाई their duration of action is very short, and that's why they are known as ultra short acting barbiturates, and they are nothing but the inducing agent. Again, after that there is a propofol, then etomidate and ketamine. Okay, so these are known as inducing agents. Out of that, ketamine produces the dissociative anesthesia. ये क्या करता है, dissociative anesthesia प्रोड्यूस करता है, dissociative anesthesia अपन बाद में इंडिविजुअल टर्म में देखेंगे। देन ओके, देन स्लो एक्टिंग ड्रग्स, ये थोड़ा सा स्लो एक्टिंग है। इंडक्शन ड्रग मतलब ये क्या होते हैं, रैपिड एक्टिंग होते हैं। इंड्यूसिंग ड्रग इज द रैपिड एक्टिंग ड्रग। ओके, तो वो जल्दी जल्दी फटाक से इंजेक्शन देने के बाद में विदिन 5 मिनट आपको एनेस्थीसिया कर देंगे। बाद में मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है, इसके लिए क्या, स्लोअर एक्टिंग ड्रग फॉर दे आर इंड्यूसिंग एजेंट और मेंटेनेंस एजेंट, ऐसा भी बोल सकते हो आप। दे आर नोन एज इंड्यूसिंग एजेंट एंड दीज आर नोन एज मेंटेनेंस एजेंट, और ऐसा भी बोल सकते हो दे आर द ओके, दे आर द रैपिड एक्टिंग, इसको रैपिड एक्टिंग बोलो, and दूसरा है slower acting. So in that you have, in the slower acting or maintenance drug you have different drugs, like for example benzodiazepine, benzodiazepines. So in that diazepam, lorazepam, midazolam. तो उसमें ट्रिक वगैरह बना के आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, LDM, DM और MDL ऐसा कुछ, diazepam, lorazepam and midazolam. So out of that midazolam is most commonly used as a anesthetic agent. मिडाजोलम जो होता है, ये मिडाजोलम इज यूज्ड एज अ मोस्ट कॉमनली anesthetic agent. So out of that मिडाजोलम इज अ ट्रायाजोलम डेरिवेटिव। क्या है, ट्रायाजोलम डेरिवेटिव। ट्राई मतलब 3, एजो मतलब नाइट्रोजन, ट्रायाजोलम 3 नाइट्रोजन वाला है, सो ट्रायाजोल रिंग होगा इसमें। सो ट्रायाजोल डेरिवेटिव, मिडाजोलम इज अ ट्रायाजोल डेरिवेटिव, याद रखना। बाकी ये नॉर्मली क्या है, डायजेपाम एंड ज़्यादा कोई बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव। आउट ऑफ दैट लोराज़ेपम में क्या होता है, लोराज़ेपम में क्लोरीन होता है, क्लोरीन लोराज़ेपम में। देन ओपाइडल एनेस्थेटिक, सो इन दैट यू हैव फेंटानिल, रैमीफेंटानिल, ओके, सुफेंटानिल एंड अल्फेंटानिल, ऑल दीज आर द ओपाइडल ड्रग। ओके, देन न्यूरोलेप्टिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक मतलब क्या है, दे आर द एंटीसाइकोटिक। ओके, एंटीसाइकोटिक होता है ड्रोपेरिडोल, इट इज अ न्यूरोलेप्टिक ड्रग। Now combination of this neuroleptic drug with the opioid drug, most famous combination is fentanyl and droperidol. So they are combined and it is known as a neuroleptic analgesia. So combination of opioid drug and neuroleptic, GPAT में क्वेश्चन आ चुका है। So combination of neuroleptic drug plus opioid analgesic drug. So most famous combination is in the fentanyl and droperidol and fentanyl. तो इसका 10 माइक्रोग्राम होता है, इसका 2.5 मिलीग्राम होता है। 10 माइक्रोग्राम या मिलीग्राम होता है, मैं बोलता हूँ आपको, आएगा आपको। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अगेन यू कैन सी क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक अगेन। सो जनरल एनेस्थेटिक्स, दे आर आइदर इनहेलेशन, जनरल एनेस्थेटिक्स इनहेलेशन। सो इनहेलेशन में गैसेस वाले आएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड आपका, देन जेनॉन गैस, ओके, एंटोनॉक्स वगैरह। नाइट्रस ऑक्साइड इज नोज लाफिंग गैस। ओके, देन वोलेटाइल लिक्विड्स में आएगा ईथर, क्लोरोफॉर्म, ओके, ईथर, क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन, बाकी सब हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, डिसिफ्लोरिन, सेविफ्लोरिन एक्सेट्रा। देन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स, सो फास्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग, थायोपेंटल सोडियम, मिथोएक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट। ओके, स्लोअर एक्टिंग में आता है आपका बेंजोडाइजेपिन वाले, उसमें डायजेपम, लोराज़ेपम, मिडाजोलम, ठीक है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने वाले केटामाइन। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, विच एनेस्थेटिक एजेंट प्रोड्यूस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, तो उसका केटामाइन आंसर है, ठीक है। एक मूवी है आपको देखो, ए सोल्जर नेवर ऑन अ हॉलीडे, अक्षय कुमार का मूवी है, ठीक है। पिक्चर नहीं देखते आप, पिक्चर ही देखना चाहिए आपने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो टेररिस्ट वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करता है, किसमें, वो बस में, और फिर अक्षय कुमार उसको पकड़ के घर में लेके जाता है, पकड़ के वहाँ पे बांधता है और अलमारी में छुपा देता है, तो उसको एक इंजेक्शन देता है केटामाइन। तो उसका जो दोस्त है वो पका है, वो पूछता है ना कि यार आयुष तू ये क्या कर रहा है, ये क्या इसको इंजेक्ट कर रहा है, बोलता है कुछ नहीं, केटामाइन है, 2 घंटे बेहोश रहेगा।
सो केटामाइन क्या करता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है ना। सो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है मैं आपको बोलूँगा, एक्सप्लेन करूँगा बाद में कि क्लासिफिकेशन है। सो रिमेंबर डायजेपाम, बेंजोडाइजेपिन्स, डायजेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलम, ओपाइड एनाल्जेसिक्स, फेंटानिल, and dissociative anesthetic that is a ketamine. Now again see inhalation anesthetics. So इसमें आएगा आपका volatile liquids like chloroform, diethyl ether, ethyl chloride, trichloroethylene, halothane, N-fluorine, isoflurane. Okay. Gases में आएगा cyclopropane, nitrous oxide, chloroform, cyclopropane. Okay. ये chloroform, cyclopropane they are no more used. Okay. nitrous oxide यूज किया जाता है. Non volatile general anesthetics. So they are also known as intravenous anesthetics. उसका फर्स्ट आएगा आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स, थायोपेंटल सोडियम मेथोएजिटल. सेकंड में आएगा आपका नॉन बार्बिट्रेट्स में फिर बाकी ओपाइडल, बेंजोडाइजेपिन्स, इसमें ये सब आएगा. नॉन बार्बिट्रेट में पहला आता है आपका बेंजोडाइजेपिन्स लाइक मिडाज़ोलम, डायजेपाम, लोराज़ेपाम. लोराज़ेपाम डायजेपाम एनेस्थेसिया के लिए नहीं यूज़ करते, मिडाज़ोलम ही यूज़ करते. देन फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन केटामाइन जो है ना उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. सो एक क्वेश्चन आया था कि इट प्रोड्यूसेस द डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. एक क्वेश्चन आया था कि केटामाइन इज केमिकली केटामाइन इज फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव, फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव. सो यहाँ पे देखो फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव केटामाइन का एग्जांपल. बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव मिडाज़ोलम, ठीक है, डायजेपाम, लोराज़ेपाम. देन फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव केटामाइन, याद रखना है फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव. देन स्टेरॉयडल ड्रग, स्टेरॉयडल डेरिवेटिव प्रेग्नेनोलोन, प्रेग्नेनो, और अदर्स में आता है आपका इटोमिडेट प्रोपोल. तो मैंने 3 बुक का क्लासिफिकेशन लिया है, तीनों बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, तो तीनों बुक का क्लासिफिकेशन अलग अलग लिया है मैंने, ताकि आपका कोई भी चांस ही नहीं बचे जो बोलने का. ठीक है, मतलब होता है हर एक बुक में थोड़ा सा अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. तो आपके लिए 2-3 बुक में से क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा है मैंने. Right now, effect associated with the dose of sedative hypnotics. ऐसा होता है. For example, same drug may act as a sedative, same drug may act as a hypnotic, same drug may act as an anxiolytic, same drug may act as a anti-epileptic, same drug may act as a anesthetic. So depending on the dose. For example, if you plot okay, y axis पे आपका CNS है, x axis पे क्या है, डोज ऑफ डिप्रेशन ड्रग, यहाँ पे सेडेटिव हिप्नोटिक बोल जाओ, डिप्रेशन ड्रग. सो इन अ वेरी स्मॉल डोज ड्रग में एक्ट एज अ एंजियोलाइटिक. ओके, इन अ स्मॉल डोज इट में एक्ट एज अ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी. इट एज अ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी. डायजेपाम इज अ मसल रिलैक्सेंट, जैसे डायजेपाम इन स्मॉल डोज इज अ एंजियोलाइटिक. इफ यू इंक्रीज द डोज डायजेपाम में एक्ट एज अ सेडेटिव, सेडेशन. ठीक है, if you increase the dose diazepam may act as an anticonvulsant. Okay? Or if you increase the dose it may act as a hypnotic. Again if you increase the dose it may act as an anesthetic or an anesthetic agent. Still if you increase the dose, okay, तो diazepam तो okay, so ये barbiturates के रिगार्डिंग भी ट्रू है. इट इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग barbiturates and benzodiazepine. But barbiturates they are very risky drug because they directly इंड्यूसेस द कोमा एंड डेथ. बाद में अगर एनेस्थेसिया के बाद में भी डोज इंक्रीज गया तो क्या होगा, देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ मेडुलरी सेंटर्स. आपके ब्रेन में जो सेंटर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन एंड ऑल दैट, दे विल बी डिप्रेस्ड. कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर विल बी डिप्रेस्ड. देन यू विल गो इनटू द कोमा एंड आपका बाद में क्लीन बोल्ड T20 वाला विकेट में गिर जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जाओगे, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा. ठीक है, सो कोमा और उसके बाद में डेथ होता है. सो सेम ड्रग विल एक्ट एज एंजियोलाइटिक इन अ स्मॉलर डोज. इट मे एक्ट एज अ सेडेटिव, इट मे एक्ट एज एंटीकॉन्वुलेंट इन अ हायर डोज, इट मे एक्ट एज अ मसल रिलैक्सेंट. इट मे इफ यू इंक्रीज डोज सेम ड्रग कैन एक्ट एज अ hypnotic. सेम ड्रग कैन इंड्यूस एनेस्थीसिया इफ यू इंक्रीज डोज. सेम ड्रग कैन कॉज मेडुलरी डिप्रेशन एंड लास्टली कोमा एंड डेथ. तो बार्बिट्रेट्स में क्या है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द अनेस्थेटिक डोज के बाद में अगर ज़्यादा डोज दे देना तो डायरेक्टली डिप्रेशन मेडुलरी सेंटर्स का डिप्रेशन हो जाएगा, कोमा में जाएगा ऑपरेशन. तो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन के वक्त में ना पेशेंट से भी ज़्यादा एक आदमी बंदा है. जब आपका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा घबराने वाला कौन होता है? आप बोलेंगे सर पेशेंट ऑब्वियसली.
पेशेंट तो होता ही घबराया वाला, लेकिन उससे ज़्यादा और एक आदमी घबराता है, उसको बोलते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर होता है, आपने देखा होगा कभी, आई डोंट नो आपके आपने कभी ऑपरेशन देखा है, गए हो नहीं, आई डोंट, ठीक है। देखो होता क्या है कि ऑपरेट करने वाला डॉक्टर अलग होता है, ही इज़ नोन एज सर्जन, ओके। सो सर्जन विल ऑपरेट पर्टिकुलर ऑपरेशन, बट to induce the anesthesia you have another physician known as a MD anesthesiologist. So he is going to inject a drugs which will induce the anesthesia. He is going to prepare a cocktail for you, है ना, जैसे आप पीने के लिए कॉकटेल बनाते हो वैसे वो आपको एनेस्थीसिया के लिए कॉकटेल बनाता है। कॉकटेल मतलब मिक्सचर ऑफ 2-3 ड्रग्स, तो एक ही ड्रग से नहीं होता है आपका, ठीक है, एनेस्थीसिया। सो ही विल मेक ए कॉकटेल फॉर यू एंड फॉर एनेस्थीसिया, ही इज़ द मोस्ट पर्सन। तो उसको एक टेंशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको एनेस्थीसिया आ जाए, स्मूथली आए, पेशेंट स्टेबल हो जाए, नहीं तो फिर इधर उधर डोज हो गया, 1 माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम इधर उधर हो गया तो उसका मिस्टेक और आपका स्वर्गवास पक्का, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। सो विल सी इट। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस जनरल एनेस्थेटिक्स। सो दिस जनरल एनेस्थेटिक्स they act on a various proteins present in the brain. They act on various ion channels present in the brain. They alter the activity of your neurotransmitter, certain inhibitory neurotransmitter, like example GABA is there, glycine is there. But there is one theory related to this, Mayer and Overton theory. So Mayer and Overton observation, they observed that there is a close relation, or there is a close relationship between the potency of anesthetic agent, तो potency of anesthetic agent and its lipid solubility, यहाँ पे मिस्टेक है, it is a lipid solubility, ठीक है। So Mayer and Overton theory, एक क्वेश्चन आ चुका है आपको। So Mayer and Overton theory is related with Mayer and Overton theory is related with anesthetic, लोग जनरल एनेस्थेटिक्स, तो आपको याद रखना है। सो ओवरटन एंड मेयर ऑब्जर्वेशन दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये बुक में तो करेक्ट हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आज करेक्ट कर दूँगा। सो मोर विल बी द लिपिड सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग, मोर विल बी द पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। तो एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना, उसका पोटेंसी लिपिड सोलिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा लिपिड सोलिबिलिटी उतना ज़्यादा उसका पोटेंसी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा थायोपेंटोन सोडियम। सो थायोपेंटोन सोडियम इट इज़ नोन एज थायोबारबिचरेट्स, एंड उसका लिपिड सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। थायोपेंटोन सोडियम हैज़ अ हाईली लिपिड सोल्यूबल, एंड दैट्स व्हाई इट मोस्टली कॉन्सनट्रेट इनटू द ब्रेन and exerts its effect. So Overton and Mayer observation, there is a close relation between potency of anesthetic agent and reproducibility, right? Now there are lot of theories. Exact mechanism of this general anesthetics there is unknown, ठीक है, बुक में भी ये लिखा है आपको। अब बुक भी पढ़ोगे तो आपको ये चलेगा। So exact mechanism of anesthetic is unknown, but it is mostly related with the inhibition of certain excitatory neurotransmitters and potentiation of inhibitory neurotransmitters, blockage of certain ion channels, etc., etc. So current event suggests that target for anesthetic agents are protein of neuronal ion, okay, for example neuronal ion channels, like, okay, then nicotinic receptors, then 5-HT3, GABA A receptor, okay, glycine receptor and glutamate receptor. So these are the targets for anesthetic drug. So anesthetic drug will interact with this. For example जैसे डाइजिबाम है या फिर आपका मिडाजोलम है, तो मिडाजोलम क्या करता है? सो मिडाजोलम इज नोन एज अ गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ये क्या करता है? न्यूरनल मेम्ब्रेन जो होता है, सो गामा ब्यूटरिक एसिड, ओके, तो ये क्या गाबा क्या करता है कि एक क्लोराइड आयन चैनल ओपन करता है, क्लोराइड। सो मान लीजिए Cl माइनस, जब क्लोराइड अंदर जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन, और हाइपर पोलराइजेशन होगा मतलब सीनेस डिप्रेशन होगा, या फिर इम्पल्स कंडक्ट नहीं होगा तो डिप्रेशन। सो मिडाजोलम इज नोन एज अ गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये स्टिमुलेट करता है गाबा ए रिसेप्टर को एंड ओपन्स द क्लोराइड आयन चैनल।
तो सेम थिंग इज डन बाय योर बार्बिचुरेट्स. बार्बिचुरेट भी वही करता है. ओके, जस्ट बाय बाइंडिंग टू ए लिटिल बिट डिफरेंट साइड. सो जो बेंजोडाइजेपिन का बाइंडिंग साइड होता है उसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा, एंड बार्बिचुरेट बाइंडिंग साइड को उसको बोलते हैं अल्फा. ठीक है. Then certain drugs like certain drugs also has a target of nicotinic receptor, जैसे डेंड्रोलोन को स्टेरॉइड ड्रग है आपको प्रेगनिलोन. सो ये निकोटिनिक रिसेप्टर को लॉक करते हैं. सर्टन ड्रग्स IV एनेस्थेटिक्स गाबा का जैसे बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स दे हैव टारगेट ऑफ गाबा. देन सर्टन ड्रग्स also block the effect of excitatory neurotransmitter. Certain drugs block the ion channels. So there are different theories for the effect of, or there are different theories for the mechanism of action of this this general anesthetics. So Mayer Overton theory आपको याद रखो. So more will be the lipid solubility of drug, more will be the potency of anesthetic agent. When anesthetic agent के लिए target क्या है? Proteins present in the neuronal membrane. Okay. For example, ion channels are there. For example, GABA is there. 5-HT nicotinic receptors are there. Glycine glutamate and glycine glutamate receptors. They are the target for your general anesthetics. Okay. Now this is applicable for the only for inhalation anesthetic. Inhalation anesthetic जो होता है जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, जो हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनहेलेशन एनेस्थेटिक. सो दिस टर्म मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज दैट? इट इज द मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट. क्या है ये? इट इज द मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट. कि एनेस्थेटिक एजेंट कितना पोटेंट है वो कैसे पता चलेगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन अल्वियोलाई में कितना है. सो minimum alveolar concentration is nothing but the concentration of anesthetic in the alveoli in the lungs. So that minimum concentration of anesthetic agent in the lungs required to abolish the pain sensation in the 50% of population. जो जैसे मान लीजिए 100 अपने सब्जेक्ट लिए, उसमें ईथर ले लो आप, ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर कोई आइसोफ्लोरिन फ्लोरिन ले लो, तो वो दे दिया. ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है जो 50% लोगों में अगर उनको आपने कट भी किया तो उनको समझ में आएगा. सो इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक इन द alveoli, minimum concentration of anesthetic in the alveoli, which will reduce the pain sensation in the 50% of population. Okay. Now higher will be the MAC, higher will be the minimum inhibitory concentration. Okay. minimum alveolar concentration. So कोई एनेस्थेटिक ड्रग का MAC मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो ज़्यादा पोटेंट है. अगर कोई एनेस्थेटिक ड्रग का मिनिमम अल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या है? लेस पोटेंट है. सो इफ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट इज रिक्वायर्ड इन द अल्वियोलाई टू प्रोड्यूस अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज नोन एज अ लेस पोटेंट और इज नोन एज अ लेस पोटेंट. So high MAC, less is the potency. Less is the MAC, higher will be the potency. Are you getting? Okay. Now this mute yourself. Now next is the color coding for the inhalation anesthetics. So inhalation जो गैस होते हैं, inhalation gases anesthetics. So they are supplied in the cylinder. So there should be a proper identification of that. That anesthetic agent. So there is a color coding of cylinder, particular गैस का कलर कोडिंग होता है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है फार्मेसी एग्जाम में तो बहुत रहा है. सो गैस एंड कलर ऑफ सिलेंडर. सो फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन सिलेंडर इज ऑलवेज पेंटेड ऑरेंज इन कलर. ऑरेंज कलर का सिलेंडर दिखा तो उसके में क्या है? साइक्लोप्रोपेन है. कलर कोडिंग तो to prevent the confusion, to prevent the adverse reactions, to mismatch the gas. इसके लिए ये सब क्या है? कलर कोडिंग होता है. सो साइक्लोप्रोपेन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द ऑरेंज कलर सिलेंडर. ठीक है. आपका जो एयर होता है, एयर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द ग्रे बॉडी विद द वाइट शोल्डर. एक सिलेंडर होगा जो सिलेंडर में क्या है? ग्रे कलर का, पूरा सिलेंडर ग्रे कलर का होगा, लेकिन उसका जो
शोल्डर है, ऊपर वाला जो वेंट होता है, वहाँ पे क्या रहेगा, वाइट पैच रहेगा. So gray body with the white shoulder. So air is supplied in the gray body with the white shoulder. Oxygen is supplied in the black color cylinder with the white shoulder. एक पूरा सिलेंडर होगा जिसका पूरा का पूरा कलर क्या है, ब्लैक है, लेकिन उसका जो वेंट होता है ऊपर वाला, वहाँ पे वाइट कलर का आपको एक स्ट्रिप मिल जाएगा. ठीक है. सो ब्लैक बॉडी विद वाइट कलर, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाइड इन द ग्रे कलर्ड सिलेंडर. Helium is supplied in the brown colored cylinder. Then Entonox, that is a mixture of 50% nitrous oxide and 50% carbon dioxide. So it is supplied with the blue colored cylinder, blue color body cylinder with the white shoulder. ठीक है. तो देखो फिर से एक बार रिवाइज करो, यहाँ पे बार बार उसको देखो, बार बार उसको देखते जाओ, बार बार उसको पढ़ते जाओ. ठीक है. साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर सिलेंडर, air gray color cylinder with a white shoulder, oxygen black color cylinder with a white shoulder, carbon dioxide gray color cylinder, helium brown color cylinder, Entonox, that is a mixture of 50% nitrous oxide and 50% carbon dioxide, blue color cylinder with the white shoulder. Important है याद रखना. Now stages of general anesthesia. ठीक है. Stages of general anesthesia. ठीक है. With the there was one scientist known as a गुडेल. गुडेल नाम का एक साइंटिस्ट थे. गुडेल इन 1920 ही डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया विद रेफरिंग टू ए ईथर. तो आजकल क्या है, नाउअडेज देयर इज अ बैलेंस एनेस्थीसिया इज द टर्म. नाउअडेज बैलेंस एनेस्थीसिया इज देयर. और ये जो स्टेज है, अभी ये स्टेज आपको मिलेंगे ही नहीं, देखने मिलते ही नहीं. सो अभी क्या है कि डायरेक्टली कॉकटेल बनाते हैं और कॉकटेल मार के आपका इंजेक्शन बना के डाल देते हैं. तो आपको फटक से 10-15 मिनट में क्या होता है, आप जाते हो कोमा में. ठीक है. मतलब कोमा मतलब एनेस्थीसिया हो जाता है आपको. बट एट व्हेन इट वाज अंडर डेवलपमेंट, इनिशियली इट वाज अंडर डेवलपमेंट, सो लॉट ऑफ ड्रग वाज टेस्टेड फॉर द एनेस्थेटिक एक्टिविटी, जैसे ओपाइडल ड्रग है, जैसे डिप्रेशन ड्रग है. बट द ब्रेक थ्रू वाज द क्लोरोफॉर्म. सो आफ्टर द क्लोरोफॉर्म देयर वाज ईथर, एंड बाय रेफरिंग टू ए ईथर एज एनेस्थेटिक एजेंट, दिस गुडेल इन 1920 he described the different stages of general anesthesia. You have to remember these stages. So I have summarized over here in a short way. So first stage is nothing but the okay, पहला stage होता है stage of analgesia. Now what is the purpose of this anesthetic drug? So anesthetic drug they should do what? Getting or not?